Just give me a second, guys. Okay, fine. I'm audible to you? Okay. So, suppose previously आप लोग क्या कर रहे थे कि you are having this HTML file and you were building the script. Okay. So script say you were making you can say any DOM element and then updating it. Correct. So that thing may whenever you are updating anything, your whole DOM was refreshing, if you remember. Correct. But in React, it is not like that. React में जो चीज आप अपडेट कर रहे हो only that thing should be update on the DOM. Okay, not the whole page. So उसके लिए we have React hooks. अब React hooks क्या होते हैं and why they are using? We will get by example. Okay. So हमने यहाँ पे root बनाई हुई है and we have linked this abc.jsx. Okay, fine. So firstly we will catch that root. And how to catch the root? Root element equal to what we will use? React DOM. Create root and from here and we will render the app. अब रेंडर करने के लिए we should having the app. तो एक ऐप कंपोनेंट बना लेते हैं फंक्शन ऐप एंड दैट्स इट. इसके अंदर जो कुछ वो रिटर्न करेगा दैट शुड बी रेंडर्ड ऑन आवर पेज. फाइन. सो सपोज इट इज रिटर्निंग यू समथिंग. सो दिस इज रिटर्निंग यू एक से पी टैग रिटर्न कर रहा है एंड इसमें कुछ भी डाल सकते हो बट हमें अभी कुछ वेरिएबल से समझना है हुक के लिए. तो लेट्स से लेट आई इक्वल टू 0. ओके. और इस पी में हम दिखाएंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई. सो वैल्यू ऑफ आई इज आई. फाइन. एंड व्हाट वी आल्सो वांट इज वी वांट टू क्रिएट अ बटन जिससे हम इस आई की वैल्यू को इंक्रीज कर सकें. क्लिक टू इंक्रीज आई. ओके. ठीक है. ये दोनों चीज एक साथ नहीं हम कर सकते तो इसको ही हमें डिव में रैप करना पड़ेगा. डिव एंड लेट्स पुट देम टुगेदर. ओके. वैल्यू ऑफ आई इज आई. क्लिक टू इंक्रीज एंड ऑन क्लिक लगा लेते हैं कुछ. ऑन क्लिक से यहीं पे बना लेते हैं आई प्लस प्लस. फाइन. चलो अलग से बना लेते हैं.
handle click, and handle click is a variable that increase the value of I. So let handle click equal to I is equal to I plus 1. Till now, any issues? No. So what we are having? We are having a p tag जिसके अंदर हम I की वैल्यू दिखा रहे हैं, and through that button we are increasing the value of I. Okay, let's see. Let's open it in the live server. Is there an issue we are having? Are we missing something? It should return this P and all. App return this diff. Get element by ID root. Root is here. It is behaving like that. Mhm. Let's stop the live server. Is not showing any errors also. Hmm. Yeah, what is the issue now? Render syntax root element dot render app. This simple. No? Any issues? अच्छा DOM. अरे यार. Works. ठीक है. ठीक है. Now see here. Yeah, thanks Abhijit. When I'm clicking it, is the value of I increasing? No. क्योंकि React doesn't work like that only. React में जो state होती है that you can update those only. बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं या फिर जो वेरिएबल्स जो आपने डिक्लेयर किए हैं अगर वो चेंज भी होते हैं तो रिएक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट, क्योंकि इट इज नॉट अ एक्चुअल डॉम दैट वी आर मैसिंग विद. करेक्ट, वो अपनी वर्चुअल डॉम देखेगा, वर्चुअल डॉम में वो स्टेट्स को चेक करेगा आइदर आइदर योर स्टेट्स आर हैविंग एनी चेंज और नॉट. अगर आपकी स्टेट्स में कुछ चेंज होंगे देन ओनली इट विल इंक्रीज. सो अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल करके दिखाऊं, हैंडल क्लिक तक तो जा रहा होगा वो. करेक्ट. कंसोल डॉट लॉग आपका आई. लेट्स सी वेदर दैट इज इंक्रीजिंग और नॉट. व्हाट इज द इशू? अभी क्या इशू हो गया? अरे यार, अभी सब ठीक है? कैसा वियर्ड बिहेव कर रहा है आज ये?
Okay, let me restart it. Just give me a second. Okay, it's working now. Chrome visible, VS Code visible. Yeah. Yes, sir. Okay. ठीक है. So we were there. Console. Let's check whether the I is increasing or not. Increase it. Is it increasing? But the value here is not increasing because it is not in the state itself. Okay. So that's why we have introduced your React hooks. Okay. So React hooks may you have multiple hooks which are use state, use ref, and many more that you will learn in the future classes. Okay. So instead of doing it like this, we will use our use state. So how to declare the use state? Let's हैंडल क्लिक को रहने देते हैं बस. ठीक है. So now tell me one thing. So let's say my आप कुछ वेरिएबल ले रहे हो. My count equal to आप use state यूज कर रहे हो. And where the use state is coming from? It is coming from React. Okay. So उसको यूज करने वो आपका React का मेथड है. तो यूज करने से पहले you should have the name of that object. So React dot use state और इसके अंदर आप क्या डालते हो जिससे आप उसको इनिशियलाइज करना चाहते हो. ओके. इन आर केस वी वांट आवर काउंट टू बी दिस. ओके. नाउ आपके हैंडल क्लिक पे आई वांट दिस माय काउंट टू बी कंसोल्ड. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी कंसोल्ड इन दिस माय काउंट? Zero? No, it will not be zero. It will not be zero. It will be an array. What will be there in the array? I is not defined. So let's remove all these things as of now. So if I'm clicking this, can you see we're having an array? At the 0th index, we are having the value that we have given, correct, inside the round braces. And second may, we are having a function. And what do we call this function? So this function can change the value of this state. Can we say this is an updater for that? Correct. जो आपको function है इसमें जो आपको given है, if you use that function and you pass any value to that as an argument, so that value will be updated at the 0th index here. Simple. So इसी चीज को आप एक और तरीके से लिख सकते हो. That is your count and count updater. Set count count updater one same thing. See, अब जो आपका एरे आया था इससे रिटर्न होके that we have destructured. Destructured in first value is count, second is count updater. Simple. Now here, if I just console count, what is the value initial at the 0th index? 0. Now that should be printed.
Works. And now this value I can increase with this count updater. So this is a function and this takes argument where we will increase the count. So count plus 1. Okay. Now if you see, our value is increasing. Correct. So this is your count and set count, or you can say updater. That's how you will declare the variables in your React. Okay. So ठीक है, handle click display कहाँ हो रहा है? Display we can have it here. The value of I is count. Fine. Increase, value is increasing. Correct. Now let's see one thing. एक चीज देखो यहाँ पे आप लिख दिया p tag में there is value 5 is this. Correct. When I clicking this, what is updating? Only the value. Nothing else is rendering. Correct. That's why the React is very efficient. क्योंकि there is no need to render the whole page if only this value is increasing. Correct. That's why it's make it smart. Correct. So now remember that thing. अगर कोई value ऐसी है that you want to have on your DOM, or you want some impact of that value in your DOM, so always initialize it with the use state. Okay. ताकि तब भी वो जब भी वो वैल्यू अपडेट हो तो आपके DOM पे भी वो रिफ्लेक्ट हो. Fine. And you can use this destructuring to get the count and set count. Okay. Now in the one component you can have multiple you can say states as well. So एक state है मेरी से string str, इसको मैं बोलता हूँ set str, and string को initialize करेंगे not with 0, we'll initialize with, you can say, empty string. Now on this handle click I can update that string also. Okay. Set string to hello world plus count. Okay. और इसको यहाँ पे शो भी कर देंगे ये string. Fine. Hello world plus count plus count. Now this count is not a variable, so plus count. Okay, it's a variable. See, hello world 0, hello world 1, hello world 2. Can you see a difference here? Value is 3, but hello world mein we are having 2. Always we are having one value less. Why is that? हम तो सेट स्ट्रिंग को अपडेट करने के बाद ही यूज कर रहे हैं. करेक्ट. सो व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि देखो आपका जो स्टेट अपडेट होगा, दिस स्टेट ऑफ काउंट, वो इस हैंडल क्लिक के पूरे एग्जीक्यूशन के बाद होगा. ओके. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका वो पूरा हैंडल क्लिक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. करेक्ट. दैट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. ओके. अभी देखो हमने इसको अगर मैं कितनी बार भी कर दूं वो अपडेट एक बार ही होगा, क्योंकि इसमें कितनी बार भी आप यूज करो, बट द काउंट दैट वी आर हैविंग हियर इज द प्रीवियस काउंट. प्रीवियस काउंट माने द काउंट, काउंट की स्टेट दैट देन वी हैव कॉल्ड दिस हैंडल क्लिक. जब हमने इस हैंडल क्लिक को कॉल किया था उस टाइम जो काउंट की स्टेट थी वो काउंट की स्टेट हर बार कॉल होगी, ना कि कोई अलग. ना अगर आप देखोगे तो if I increase it, it will only increase by 1, not by multiple times that I have used. Correct. तो पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ही it will have an impact on this state. Fine. Please keep that in mind.
इट इज नॉट दैट आप नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो, बट अगेन आपको यहाँ पे एक वो यूज करना पड़ेगा, कॉल बैक। इसमें आपका प्रीवियस काउंट होगा, इसको आप इंक्रीज करोगे फिर, प्रीवियस काउंट +1। ना अगर आप इसको मल्टीपल टाइम यूज करोगे तो यू विल हैव द अपडेटेड वैल्यू एवरी टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम कॉल बैक यूज कर रहे हैं। इंक्रीज, इंक्रीज बाय 5, करेक्ट, इंक्रीज, इंक्रीज बाय 5, बट इस पॉइंट पे वो काउंट की वैल्यू पुरानी ही थी। गेटिंग इट? ऐसा ना। सो अगर आपको अपडेट करके तुरंत ही दिखानी है तो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग इट इन कॉल बैक, नॉट डायरेक्टली पासिंग द वैल्यू। फाइन गाइस, चलिए मूव फॉरवर्ड। यस, नो, इज देयर एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? ओके। सो बेसिकली पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे कि काउंट अपडेटर को कॉल कर रहे थे एंड डायरेक्टली अपडेटिंग द वैल्यू, करेक्ट, जो हम इस काउंट में चाहते हैं। सो आप इसको मल्टीपल टाइम्स पे अगर कॉल करोगे तो यू विल बी हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ काउंट, क्योंकि आपका ये हैंडल क्लिक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी, करेक्ट। सो दैट्स वाई आपने इसको 4 बार लिखा, बट इंक्रीज कितनी बार होगा? ओनली वंस, क्योंकि द काउंट वैल्यू रिमेन्स द सेम। ओके, बट अगर आप इसको ही सेम वे को एज अ कॉल बैक पास करोगे, ओके, कॉल बैक में क्या होता है, इसके पास जो पुरानी प्रीवियस काउंट था, ये कुछ भी नाम हो सकता है, ABC, XYZ, जो भी पुराना था उसको आप इंक्रीज करके यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो, करेक्ट, सो दैट वी कैन डायरेक्टली अपडेट इट, जो प्रीवियस वैल्यू है वो स्टोर्ड हो जाए बेसिकली इन द काउंट, ताकि आप अगली बार सेम ही हैंडल क्लिक में उसको कॉल करो तो दैट वैल्यू शुड बी इंटैक्ट। ओके, जो आपने अपडेट किया है दैट ओनली शुड बी अपडेटेड अगेन। फाइन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर कॉल बैक। Right, guys? Okay, so this is the only thing, a controlled and uncontrolled component. Control में you are using hooks, uncontrolled में you are using direct variables. Okay, ठीक है। इनपुट की वैल्यू कैसे प्रिंट करें डिस्प्ले पे यूजिंग हुक्स? ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं अभी। ओके, लेट्स रिमूव ऑल दिस। गाइस गॉट दिस कॉन्सेप्ट नो? प्रीवियस काउंट वाला? ओके, ठीक है। नाउ से you are returning a division from here. Now this time you are having a input tag. Okay, एक div बना लेते हैं, एक input tag, input type text रहेगा आपका। What else? इसके बाद एक प्लेस होल्डर बना लेते हैं, प्लेस होल्डर p टैग, जो भी आपने इनपुट में डाला है वो दिखेगा इसमें, ठीक है। सो उसके लिए वी वांट अ हुक, सो लेट्स क्रिएट अ हुक, लेट योर string set str इक्वल टू यूज स्टेट एंड एम्प्टी ब्रैकेट। सो यहाँ पे क्या हम शो करेंगे, जो आपकी स्ट्रिंग की करंट वैल्यू। फाइन, नाउ व्हाट वी वांट इज, जैसे ही हम इनपुट करना स्टार्ट करें तो ये p की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए हमें इनपुट पे ऑन चेंज लगाना पड़ेगा, जैसे ही इसमें कुछ भी चेंज हो दैट शुड बी अपडेटेड।
तो लेट्स से ऑन चेंज, एंड ऑन चेंज में वी विल हैव सम कोई भी फंक्शन पास कर देते हैं, हैंडल चेंज, और इसको हम ऊपर बना लेंगे, लेट हैंडल change equal to this. Now what is this event? Event is this input, ये सुनो जहां से वो कॉल हो रहा है, create react state variable is called hook. हाँ, hooks are of multiple types संतोष, वो आप आगे जाके सीखोगे. This use state is a hook of react. हाँ, खाली use state भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू इम्पोर्ट इट पहले, है ना. तो अगर आप आपने इम्पोर्ट नहीं किया है तो अभी ये एरर देगा. लेट्स सी व्हाट इज द एरर, क्योंकि इसको डायरेक्टली नहीं पता है कुछ. से यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट. तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट यूज स्टेट. कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? फ्रॉम रिएक्ट. ओके, नाउ यू कैन यूज इट डायरेक्टली. रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड. अरे ठीक है, अभी हम वो बना नहीं रहे, तो अभी इसको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं. आगे जाके आप व्यू सीखोगे या फिर वाइट सीखोगे तो उसमें आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाओगे. ठीक है, अभी आप रिएक्ट डायरेक्टली यूज करो, दैट यू डिफाइन. नाउ व्हाट वी वांट इज वी वांट टू अपडेट दिस str, correct, on change, any change. So what we can do is directly set string equal to event dot target, this is input, और इसकी जो भी वैल्यू है at that current point. Okay, so let's see, works. एंड इसको कंट्रोल्ड बनाने के लिए व्हाट वी वांट इज, जो भी वैल्यू है इसकी इनपुट की वो भी हम यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं एज अ चिल्ड्रन. वैल्यू इज आर str. ओके, इसका यूज केस क्या है वो विल सी, बट इट इज वर्किंग द सेम. फाइन, जो भी आप लिख रहे हो इट इज गेटिंग अपडेटेड इन योर DOM. फाइन. Who was asking this question? Sheikh, is it clear? Okay. To do app and all we will see. ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं. नाउ सपोज आप एक बटन भी बनाना चाहते हो यहाँ पे. ओके, उस बटन से क्या होगा, जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ रीसेट नाम से बटन होगा, तो दिस वैल्यू शुड गेट रीसेट टू एम्प्टी. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ बटन. पी टैग बना लिया. आफ्टरवर्ड्स लेट्स क्रिएट अ बटन, बटन रीसेट. सेम एक ऑन क्लिक बना लेंगे. हैंडल रीसेट. रीसेट इक्वल टू एनी फंक्शन जिसका काम है सेट स्ट्रिंग को एम्प्टी कर देना. फाइन. ओके, सो हमने कुछ भी लिखा, रीसेट. ओके, बट सपोज आपने ये वैल्यू का यूज नहीं किया यहाँ पे, तो व्हाट विल हैपन? मैंने किया रीसेट, आपका क्या हुआ? सिर्फ जो पी टैग था, क्योंकि इसकी वैल्यू इन टैग्ड है, करेक्ट. क्योंकि चेंज तो खाली इस पे हुआ ना, इनपुट टैग पे तो हम कुछ str यूज ही नहीं कर रहे. इज दिस str इज बीइंग यूज्ड इन दिस इनपुट एनीवेयर? नहीं. तो डॉम किसको चेंज करता है, मतलब आपका रिएक्ट किसको चेंज करेगा? जहां पे आपने उस स्टेट को यूज किया है, ऐसा ना. तो जहां पे यूज किया है दैट इज गेटिंग अपडेटेड, वो रीसेट होकर दिखा रहा है हमारे वैल्यू को, करेक्ट. दैट्स वाई हम यहाँ पे वैल्यू को यूज करते हैं, ताकि आपने अगर रीसेट को क्लिक किया तो यहाँ भी, यहाँ से भी वो अपडेट होना चाहिए.
डिस्प्ले रहने देना है अगर ऐसा। सी, हमने रीसेट किया, रीसेट पे भी दोनों चीजें खत्म हो रही है। करेक्ट। तो हैंडल रीसेट पे आपने से सेट स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दिया है, और यहाँ पे आप str का यूज कर रहे हो। व्हाट वी कैन डू, एनी आइडियाज गाइस? व्हाट शेक इज सेइंग, ऑन द क्लिकिंग ऑन दिस रीसेट बटन, आपका जो वैल्यू है या मीन्स इनपुट में जो कुछ है वो सब रीसेट होना चाहिए, बाकी चीजें नहीं, मतलब जो पी टैग है वहां से नहीं। पुश टू एरे, ओके। कैन वी क्रिएट अनदर यूज स्टेट? यस नो? ओके, सो लेट योर से my p set p equal to not array this, ओके। हैंडल चेंज पे क्या करना है कि सेट स्ट्रिंग को आप चेंज कर रहे हो, स्ट्रिंग से सेट पी को भी चेंज कर सकते हो, सेट पी सेम वैल्यू, करेक्ट। बट जब हम अपडेट कर रहे हैं तो सिर्फ सेट स्ट्रिंग को कर रहे हैं, और यहाँ पे पी की वैल्यू दिखाएंगे। p is not defined, it is my p। यहाँ पे हमने लिखा रिसेट, सिर्फ क्या हुआ, इनपुट, फाइन। इज इट क्लियर गाइस टिल नाउ? नाउ देयर वाज समथिंग लाइक रिएक्ट डेवलपर टूल्स, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसमें आप अपने कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हो क्या क्या है। सी, यहाँ पे दो स्टेट है अपने पास, एक एम्प्टी है अभी और एक में दिस है। अभी इतना यूज़ नहीं आएगा इसका, क्योंकि यू हैव वी आर हैविंग लेस स्टेट्स एज ऑफ नाउ। बट आगे जाके व्हेन यू वांट टू ट्रैक समथिंग, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, क्योंकि कई कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको डॉम पे डायरेक्टली विजिबल नहीं कराने होते। तो आप यहाँ से आके उनको चेक कर सकते हो कि किस स्टेट में कौन सी वैल्यू करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर नाउ इट इज़ ऑफ नॉट दैट मच यूज, वो हम डायरेक्टली डॉम पे देख लेंगे। ओके, लेट्स कम टू योर स्टेट अपलिफ्टमेंट। Let's remove all these things. Now state upliftment, जैसा आपने बोला था, it is from child to parent or parent to child? Parent to child, correct? Okay. Now let's say your this app, ठीक है, पहले इंडिपेंडेंट दिखते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट में सपोज यू आर हैविंग कोई कंपोनेंट है, लेट नॉट लेट फंक्शन माई एस टी आर, एंड इसके अंदर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग यूज स्टेट टू इनिशियलाइज योर स्ट्रिंग। ओके, सो लेट str set str react dot usage empty string, ओके। एंड यहाँ पे ही आपके पास
आप रिटर्न कर रहे हो। आप रिटर्न क्या कर रहे हो से इसको अपडेट करने के लिए क्या कर सकते हो, बटन ले सकते हैं, रिटर्न अ बटन, what it will show, it will show your str, and on click पे it should increase, on click पे से str hello हो गया, फाइन, एनी इश्यूज चलना, we are just having a string, and on this click of the button the string will convert into, चलो initially it is say hi, initially hi है, and on this button click it will become hello, fine, we can do that, ठीक है। Now in this app we are calling this component, return my string, रिटर्न नहीं करते, सपोज मल्टीपल टाइम्स कॉल करना है अपने को, तो रिटर्न एक फ्रेगमेंट ले लेते हैं, फ्रेगमेंट में वी कैन कॉल इट मल्टीपल टाइम्स, माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग, ओके। नाउ व्हाट विल बी देयर, कैन यू सी बोथ द बटन्स, initial value we are having in both the buttons, yes। Now what will happen if I click this right one, what do you think, it will get converted to hello, but will this left one will also get converted to hello, yes, no, no, it will not, see, only right one is getting converted, क्योंकि when we are calling those components, तो they are being called separately, and every time it will be having its separate state and this button, okay, क्योंकि यहाँ पेरेंट से तो कुछ पास नहीं कर रहे ना इधर, this is empty, all the things are happening there and there only in my str, yes or no, so every time you call my str here it will be independent, okay, next my str से उसका कोई बेसिकली इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा वहाँ पे, करेक्ट। So if you want that all your MyStr should share the same string, so should you be initializing the string there in MyStr or app? If you want all the MyStr to share the same, you can say state of this str, so this should be initialized in the app only. Yes or no? Let's call it here. Now, what you are using here? String. But do your MyStr now know what is str? क्योंकि आपने मैप उसको ऐप में डाला है. So what is the method? What is the method of passing that str to my str? You've learned props, yes or no? Correct. So you can have the prop here, say my str, and उसको हम पास करेंगे यहाँ से my str equal to str. Okay, and this str is a state here. Similarly, my str is equal to state. Now can we say that both are sharing the same state through the component? Now just see here, what are we getting as an error? Str is not defined. What else? Str is not defined.
str is not defined. Let's refresh. Same. Okay. The thing is कि आप set str यहाँ पे यूज कर रहे हो, बट दिस वी हैव इनिशियलाइज्ड हियर, ये फंक्शन भी यहाँ पे ही इनिशियलाइज किया, करेक्ट। इसका भी उसको कुछ नहीं पता है, करेक्ट। तो हाउ कैन वी पास दिस str? एज अ प्रॉप डाल सकते हैं, ठीक है, इसको भी एज अ प्रॉप डाल देते हैं। इसको नाम देते हैं से फंक्शन इक्वल टू सेट str, function equal to set str, or here function. Now should we call it set str or function? We should call it function. Now this function will get executed, and what is there in this function? This set str, और यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं हम, hello. तो it should get updated. Still we are having issues. str is not defined. Where it is? Line number 2. Here it should be my str. Fine, works. Second button is not working. Why is that? My str returning button. Refresh. What is that? Why we are not having the second button? Small m. Where? Rahul, where? Here. Okay. Prop karat pass की. Fine now. We are having both the buttons and they are sharing the same state. str and उसका updater. So जब हम इसको अपडेट करेंगे कहीं से भी, तो वो दोनों आपके कंपोनेंट्स में चेंज होगा. ओके, क्लिकिंग इट हेयर एंड चेंजिंग इट एवरीवेयर, ऐसा ना. रिफ्रेश, चेंज, दोनों और एक साथ. यस, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज स्टेट अपलिफ्टिंग. अभी आप सेम चीजें चाइल्ड टू पेरेंट भी कर सकते हो एंड इन द सिबलिंग्स भी कर सकते हो, मल्टीपल चाइल्ड्स में एक साथ. ओके, दैट थिंग आई गेस यू कैन लर्न फ्रॉम द नोट्स और द लेक्चर. आई गेस कल हुआ भी होगा लेक्चर में, करेक्ट. उसमें बेसिकली कुछ नहीं करते यार, एक फंक्शन बना के यहाँ पे बस पास कर देते हैं और वो चाइल्ड से हम अपडेट कर देते हैं, तो वो चाइल्ड टू पेरेंट हो गया फिर. ओके, नाउ यू गाइस टेल मी इन which of the assignment you are having issues. If you have seen the assignments, you can tell me. Second, yeah, which second? Let me share my screen again. Hold on. Chrome visible है ना? Assignments batch. जो कल रिलीज हुआ उसमें. Yes. Okay. Which one? This dynamic form. So third and fourth. शेख आपका सेकंड हो गया. No. Why only third and fourth you are seeing them? Okay. So इसमें क्या given है आपको? In the assignment, you will expand your understanding on this.
बाय बिल्डिंग डायनामिक फॉर्म allows यूजर टू हैव मल्टीपल इनपुट्स ऑन द फ्लाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूज स्टेट यूज करना है, डायनामिक एडिंग एंड रिमूविंग फॉर्म इनपुट। ओके, आपको ये भी दिया है, ये सेटअप हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इनिशियल फॉर्म स्टेट क्या रहेगी आपकी? स्टार्ट विद द सिंगल इनपुट फील्ड। ठीक है, वेयर यूजर कैन टाइप द हॉबी। फाइन। नाउ include a button to add more hobbies and remove them as needed। ठीक है, ऐड करने के लिए ऐड बटन रहेगा। फर्स्ट फील्ड आपकी मेंटेन रहनी चाहिए इनिशियली। ठीक है। यूज द यूज स्टेट हुक टू मैनेज द स्टेट हॉबीज। ओके, हॉबीज के लिए यूज स्टेट बनेगा, सबमिट करना है। ठीक है। ओके, एट विच पॉइंट यू आर गेटिंग स्टक गाइस इन दिस क्वेश्चन? एरे में हॉबीज, इस एरे। स्टेट मैनेजमेंट। ओके, ठीक है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू बिल्ड बेसिक स्ट्रक्चर। वो कंप्लीट नहीं करेंगे बट यू विल गेट द आइडिया। VS Code विजिबल? ओके, क्रोम पे ऑलरेडी इट इज देयर। ठीक है। ओके, ऐप कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ऐप कंपोनेंट इज ऑलरेडी देयर। ओके, फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर हैविंग इन द इनिशियल पेज? फॉर्म, फॉर्म एंड सबमिट बटन। यस। ओके, फॉर्म है, इनपुट है, ऑल करेक्ट। सो से फॉर्म है, फॉर्म एक्शन एंड ऑल, अब बाद में देखना। फॉर्म पे हमें ऑन सबमिट लगाना है एक। ऑन सबमिट, ये बाद में लगा लेंगे, क्या है इसके अंदर। व्हाट एल्स? फॉर्म के अंदर क्या है अपने पास? इनपुट बटन। ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट है आपका, कुछ वैल्यू ले लेते हैं, वो हम बाद में बना लेंगे। वैल्यू इक्वल टू सम एम्प्टी थिंग एंड ऑन चेंज पे कुछ डाल देते हैं, यही बाद में बना लेंगे। ठीक है, इनपुट हो गया। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? टू बटन्स, बट जो रिमूव बटन होगा व्हेन इट विल कम? आफ्टर एडिंग ओनली? ओके, लेट्स नॉट अप्रोच इट दिस वे। पहले हम स्टेट्स बना लेते हैं, ओके, ताकि बाद में इजी रहे अपने पास। सो व्हाट आर द स्टेट्स वी शुड बी हैविंग? हॉबीज एरे बस एक ही है, ऐसा ना? लेट हॉबीज और सेट हॉबीज, इनिशियली इट इज अ एम्प्टी एरे। फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट योर होम फॉर्म। फॉर्म बनाया आपने, इस पे आप ऑन सबमिट डाल दोगे कुछ। ऑन सबमिट से हैंडल सबमिट, एक फंक्शन होगा जो ऊपर बना लेते हैं अपन। लेट हैंडल सबमिट इक्वल टू दिस।
इसको बाद में बना लेंगे, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, इनपुट टैग एंड ऑल इज दैट इज फाइन, बट दैट शुड बी डायनेमिक, करेक्ट? कितने इनपुट फॉर्म आपको दिख रहे हैं उधर, एंड कितने इनपुट फॉर्म दिखने चाहिए जितने आपने सबमिट किए हुए हैं, ये सुनो। सो इनिशियली क्या हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल सकते हैं? ठीक है। नाउ आपने पिछले डाउटशन में देखा होगा, अगर तो हम डॉट अगर फॉर ईच यूज कर रहे हैं तो दैट इज हैविंग नो इम्पैक्ट ऑन आवर डॉम, करेक्ट? तो व्हाट एल्स वी कैन यूज? पिछली बार क्या देखा था हमने? हॉबीज। हॉबीज में क्या? डॉट मैप, करेक्ट। सो हम हॉबीज में क्या लगाएंगे? डॉट मैप। हॉबीज डॉट मैप, और इसमें आपकी क्या क्या रहेगा? हॉबी और इंडेक्स, फाइन। व्हाट इज दिस हॉबी? द इंडिविजुअल हॉबी दैट इज देयर इन दिस एरे, करेक्ट? एंड व्हाट इज दिस इंडेक्स? जो एरिया पे आप इटरेट करोगे, दैट इंडेक्स इज, करेक्ट, फाइन। सो फॉर ईच हॉबी कैन बी क्रिएटेड इफ, यहाँ पे की डाल देते हैं, की कॉन्सेप्ट नहीं हुआ आई गेस आपका। ठीक, तो यू कैन इग्नोर इट फॉर नाउ, आई एम जस्ट एडिंग इट। अभी आप बनाओगे इनपुट टैग आपका, इनपुट टैग टेक्स्ट वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू शुड बी हैविंग? दिस हॉबी, करेक्ट? वैल्यू इज हॉबी, एंड ऑन चेंज यू कैन डू समथिंग। ऑन चेंज पे क्या इफेक्ट होगा आपका? सेट हॉबीज, ऑन चेंज पे सेट हॉबीज को हम क्यों इफेक्ट करेंगे? ऑन दिस इनपुट चेंज क्या चेंज होना चाहिए? ओके, हैविंग डाउट्स, ठीक है, इसको देख लेते हैं ऑन चेंज लगाना भी है कि नहीं लगाना, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स? नाउ आगे कितने आपके डिव होंगे? ये तो आपका मैंडेटरी वाला डिव है जो हमेशा रहना ही चाहिए, करेक्ट, जिसमें आप इनपुट डालोगे। ना उसके अलावा कितने आपके इनपुट टैग्स रहने चाहिए जितनी आपकी हॉबीज है? ये सुनो, तो आप उसको इंडेक्स से ट्रैक कर सकते हो। इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, इनपुट इज, अगर इंडेक्स ग्रेटर देन जीरो है तो आप एक बटन बना सकते हो रिमूव का, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद ही बटन बनेगा, अदरवाइज बटन नहीं बनेगा, सिंपल। ओके, सो इस पे भी आपको ऑन क्लिक कुछ लगाना पड़ेगा ताकि आप रिमूव कर पाओ थ्रू द इंडेक्स। ऑन क्लिक क्या लगाएंगे बाद में देखते हैं, बटन ही है, इसका टाइप भी डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। टाइप इक्वल टू बटन, बटन ऑलरेडी है तो डालने की जरूरत नहीं है। ऑन क्लिक रिमूव, ओके। व्हाट एल्स रिमेनिंग? बटन बना लिया अपन ने, डिव क्लोज हो गया, व्हाट इज मिसिंग नाउ? दो बटन थे, एक ऐड के लिए, एक रिमूव के लिए, तो हमने रिमूव का बना लिया। नाउ लेट्स कम आउट ऑफ दिस मैप, अब हम ऐड के लिए बनाएंगे, ओके। तो एक बटन बनाएंगे, बटन ऐड हॉबी, इसमें भी ऑन क्लिक डाल देंगे कुछ, फाइन। टाइप बटन ये से, व्हाट एल्स? ऐड का है,
रिमूव का है, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट देयर? ओके, फॉर्म का सबमिट बटन रहेगा, ठीक है। तो एक और बटन डालते सबमिट का, बटन सबमिट एंड ऑन क्लिक समथिंग, टाइप सबमिट है इस वाला, ठीक है। बाकी टाइप क्या थे? बटन्स। टिल नाउ एनी इश्यूज? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस फॉर्म। फॉर्म में कुछ हॉबीज हैं, देन आपका इनपुट टैग एंड ऑल वी हैव ऑलरेडी मेड। करेक्ट, एक इनपुट टैग ये है इनिशियल वाला जिसमें आप टाइप करोगे कितनी वैल्यूज हैं, और एक एक्स्ट्रा बनेगा। ओके, अभी ऑन क्लिक डाल लेते सबके। सो फर्स्टली हैंडल सबमिट हम बना चुके हैं, ठीक है। ऑन दिस इनपुट व्हाट आई वांट टू चेंज, ऑन चेंज क्या डाले बताओ? इवेंट बना लेते हैं, हैंडल हॉबी चेंज। एंड हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हैं वो डाल सकते हैं। अपने पास इंडेक्स है, व्हाट एल्स यू आर हैविंग? द इवेंट। फाइन, अब इसको बना लेते हैं अपन ऊपर। लेट दिस इक्वल टू index event we are passing from there, and what we can do from here, let new hobbies equal to this is hobbies। इसका मतलब क्या हुआ? एक आपने नया वेरिएबल लिया है, और वो एक एरे है जिसके अंदर आपने एरे की कॉपी बना ली बेसिकली, दिस एरे की। करेक्ट। नाउ व्हाट यू वांट इज, उस इंडेक्स पे, न्यू हॉबीज के इंडेक्स पे आप इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डाल रहे हैं। फाइन, न्यू हॉबीज के इंडेक्स पे, या फिर इंडेक्स प्लस वन कर सकते हैं। चलो अब इंडेक्स रहने देते, देखते हैं। न्यू हॉबीज के इंडेक्स पे ये डाल दिया, और ये न्यू हॉबीज को हम सेट कर देंगे यहाँ पे, सेट हॉबीज एज न्यू हॉबीज। फाइन, ओके। ऑन कॉल सा ऑन क्लिक रह गया, दिस बटन इज फॉर रिमूविंग। नाउ रिमूविंग के लिए भी हमें इंडेक्स लगेगा। करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी डाल देते हैं रिमूव हॉबी, और यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स पास करेंगे क्योंकि यहाँ फिल्टर से हम लगा देंगे। सो इसको भी बना लेते हैं, लेट न्यू हॉबी इक्वल टू इंडेक्स एंड ऑल, रिमूव हॉबी बेसिकली। नाउ फिर से क्या करेंगे हम, लेट न्यू हॉबीज, इस बार फिल्टर करके डायरेक्टली ले लेंगे, स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो हॉबीज डॉट फिल्टर, आई अगर इंडेक्स पे नहीं है तो बाकी सब रिटर्न हो जाएगा, करेक्ट, और नई वाली को हम सेट कर देंगे। एंड इश्यूज है रिमूव हुई में, फिल्टर आप सब लोग ने यूज किया डॉम में। करेक्ट, फॉर नाउ वी आर नॉट हैविंग हॉबीज, सो हम इसको एम्प्टी कर देंगे, जो भी उसका वैल्यू रहेगा। करेक्ट, इस इंडेक्स पे जो कुछ होगा वो वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास, हम फिल्टर के समय हमारे पास एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एलिमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, हम खाली आई के थ्रू डाल रहे हैं उसको। एनी इश्यूज किसी को? स्प्लाइस करना है, स्प्लाइस कर सकते हो, यू आर ऑलरेडी हैविंग इंडेक्स। इट इज एन एरे, तो एरे के ऊपर जो भी लगता है दैट यू कैन हैव।
फाइन टेल नाउ व्हाट एल्स वी आर हैविंग ऐड हॉबी बटन. ओके, इस पे भी हम से एक बना लेते हैं फंक्शन ऐड हॉबी. कॉपी. लेट्स क्रिएट ऐड हॉबी. इट्स अ फंक्शन. अभी ये फंक्शन क्या करेगा बताओ. ऐड हॉबीज क्या करेगा. एक नया इनपुट बनाएगा आपके लिए. ये सुनो, जिस इनपुट में यू कैन टाइप एंड देन सबमिट. वही दिया था क्वेश्चन में. करेक्ट. I guess if you are missing something, we will do afterwards. Let's see. Okay. ये आपके पास एक इनपुट बन गया जिस पे आप टाइप कर सकते हो. इफ आई ऐड हॉबी तो क्या होगा. ऐड हॉबी करने से क्या होगा. सी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम. सेट हॉबीज जो है उस नेक्स्ट इनपुट आ जाएगा. आ गया. ऐड हॉबी नया बन गया. ऐड हॉबी नया बन गया. ठीक है. सबमिट करने से क्या होगा. सबमिट करने से भी सेम ही चीज़ हो रही है. सबमिट करने से लेट्स से हम कंसोल कर लेते हैं सबमिट का. हैंडल सबमिट कंसोल डॉट लॉग हॉबीज. सो लेट्स ट्राई अगेन. पुटिंग समथिंग ऐड हॉबी. पुटिंग समथिंग ऐड हॉबी. लेट्स सबमिट. व्हाट वी आर हैविंग. 3 इनपुट टेक्स्ट और उसकी सारी वैल्यूज आ रही हैं. करेक्ट. ओके. लेट्स ट्राई टू रिमूव. क्या हम एडिट भी कर सकते हैं. लेट्स सी. सबमिट. आर यू एबल टू एडिट. एडिट ऑल्सो. यस. ऐड हॉबी करने से नया आपके पास इनपुट भी आ रहा है. सो लेट्स ट्राई टू रिमूव. 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 रिमूव भी हो रहा है. और यहाँ पे हम रिमूव क्यों नहीं लगा सकते. टेल मी. क्योंकि इनिशियली आपको क्वेश्चन में गिवन था कि एक इनपुट टैग हमेशा रहना चाहिए. ओके. आप अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो. रिमूव की जगह यू कैन हैव रीसेट ऑल्सो इफ यू वांट. जब आपका इंडेक्स इज 1 तो इनिशियली यू कैन हैव रीसेट. हो जाएगा. क्लियर. नाउ यू कैन ट्राई है ना. इफ यू वांट टू सी द कोड वंस यू कैन हैव अ लुक. से हम क्या कर रहे हैं देखो. एक फॉर्म बनाया हमने. फॉर्म इज एंडिंग एट द लास्ट ओनली. ओके. सारी चीजें होने के बाद अभी जितनी भी हॉबीज थी आपकी. अगर अच्छा ठीक है. इफ यू हैव रिमूव दिस व्हाट विल हैपन. सी. इनिशियली एक भी इनपुट नहीं बन रहा है. नो. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड देयर एम्प्टी स्ट्रिंग ताकि आपके पास एरे में एटलीस्ट एक वैल्यू रहे जिसके बेसिस पे हम सारे डिविजन्स बना रहे हैं यहाँ पे. सी. करेक्ट. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रिमूव का बटन वहां पे हो जहाँ पे इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0. करेक्ट. अगर इफ को आप करोगे कि इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हर एक पे रिमूव आएगा. सी. इनिशियली आ रहा है आपके पास. रिमूव कर दोगे तो इज देयर एनी वे. ऐड करोगे फिर से आ जाएगा. फाइन. करेक्ट. यहाँ पे मैपिंग के थ्रू हम अपने डिविजन्स बना रहे हैं जिसके अंदर आपका इनपुट टैग और रिमूव बटन है. या यू कैन से दिस इज कंडीशनल. ओके. एक्सप्लेन द फंक्शंस. ओके. सबमिट पे तो हम कुछ नहीं कर रहे सिर्फ कंसोल कर रहे हैं. ओके. दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस. वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में तो इसलिए हम कंसोल कर रहे हैं. नाउ और क्या चीज़ें हैं आपके पास. ऐड हॉबी है. ऐड हॉबी में क्या कर रहे हैं. सी.
ऐड हॉबी में सेट हॉबीज, मतलब जितने भी पुरानी आपकी एरे की लेंथ थी उसको अपडेट कर रहे हैं बाय वन, और नया वैल्यू क्या डाल रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो उससे आपके पास इस मैप के थ्रू अगेन एक नया इनपुट बन जाएगा। ओके, जिसमें आप वैल्यू डाल के फिर से ऐड कर सकते हो। व्हाट एल्स, रिमूव हॉबी, रिमूव हॉबी में सिर्फ हम फिल्टर यूज कर रहे हैं और उस न्यू हॉबीज को सेट हॉबीज में डाल रहे हैं, फिर से वो मैप होके सारे इनपुट बन जाएंगे। व्हाट एल्स, हैंडल हॉबी चेंज, इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो भी आपका जो भी चेंज किया आपने ऑन चेंज पे लगाया, देखो जो भी चेंज किया है उसकी वैल्यू हम नए इंडेक्स पे डाल रहे हैं जो करंट इंडेक्स है अपना। ओके, उस इंडेक्स पे हम क्या कर रहे हैं, फिर न्यू हॉबीज में उसको ऐड कर दिया पहली बात, फिर सेट हॉबीज में उसको डाल दिया। फाइन, इजी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन हेयर, जस्ट रीवॉच दिस वीडियो, है ना, यू विल गेट क्लियरिटी। ओके, 3 एंड 4 ऊपर से समझा दीजिए, व्हाट वी आर हैविंग 3 एंड 4। क्विज एप्लीकेशन, ठीक है। फोकस ऑन एप्लीकेशन स्टेट प्रोजेक्ट विल हेल्प, कलर पे कर यार, इजी है प्लीज। ओके, तो बेसिकली आपके पास 3 क्वेश्चन रहेंगे स्क्रीन पे, एंड ईच ऑफ देम विल बी हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक यूज स्टेट रहेगी। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, रेडियो बटन्स बना सकते हो ईच क्वेश्चन में, ऑप्शन में, ताकि आप एक ही सिलेक्ट कर पाओ, और जो आपने सिलेक्ट किया है वो यूज स्टेट में हर हुक में अपडेट हो जाए। ओके, और आप लॉजिक लगा सकते हो वेदर दैट ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट, एंड ऑन द सबमिशन आप क्या करोगे, जो भी लॉजिक है उसका आपके अकॉर्डिंग जो जो उसने ऑप्शन सिलेक्ट करे हैं आप उसके मार्क्स दिखाओगे। ओके, योर स्कोर। फिर आप टी स्टार्ट भी कर सकते हो, मतलब सारे जो हुक्स हैं उनको फिर से एम्प्टी कर दोगे। तो इनिशियली जो आपके सामने एज अ रीसेट बटन है वो बेसिकली, फाइन, आई गेस हो जाना चाहिए इसमें। बस ये है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हुक बनाना पड़ेगा। फाइन, कलर पिकर में इफ एल्स कैसे लगेगा, कलर पिकर आपका वो भी इजी है। ठीक है, लेट्स डू द कलर पिकर, वो छोटा सा है एक। कलर पिकर में कुछ नहीं यार, आपके पास एक इनपुट टैग रहेगा जिसके अंदर आप कोई भी हेक्सा कलर डालोगे तो वो कलर आपके डिस्प्ले पे विजिबल रहना चाहिए। करेक्ट, वही था, ये सुनो। करेक्ट, तो एक डिवीजन बना लेते हैं। डिवीजन में फर्स्ट आपका इनपुट रहेगा जिसमें आप वो कोड डालोगे। ओके, एंड व्हाट विल बी द सेकंड थिंग, एक डिवीजन रहेगा जिसमें वो कलर दिखेगा एज अ बैकग्राउंड कलर। डेव, इसके अंदर इसको स्टाइल कर लेते हैं, स्टाइल। कलर कौन सा रहेगा जो आप स्टेट बनाओगे। ओके, लेट कलर, सेट कलर, यूज स्टेट इनिशियली एम्प्टी, फाइन, नॉट कलर, बीजी कलर नो, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर विल बी द कलर, फाइन, और इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हो, हाइट, विड्थ,
इतना ही, मार्जिन ऑन कैन यूज। और इनपुट में क्या रहेगा, इनपुट में आप ऑन चेंज डाल दोगे, ऑन चेंज सेट कलर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। फाइन। यस, बाकी चीज़ें आप डाल सकते हो यार, उसमें इश्यू नहीं है। वैल्यू से कलर, टाइप टेक्स्ट ही है उसका, प्लेस होल्डर आप चाहो तो डाल सकते हो। सो लेट्स सी, व्हाट इज द इशू, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। हैशटैग कुछ भी नंबर डाल देता हूँ मैं। नॉट वर्किंग, क्या इशू है? ऑन चेंज इवेंट सेट कलर, दिस कलर मैं यहाँ पे यूज किया है, इसको पिक्सल्स में दे देते हैं। अरे यार कैसे देंगे इसको? स्ट्रिंग, व्हाट इज द स्ट्रिंग? वेयर यूजिंग करंट? सर बैकग्राउंड कलर में जो कलर है ना वो इसके अंदर नहीं है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं आएगा। ओके, वी आर डायरेक्टली यूजिंग दैट। फाइन फाइन फाइन। हैशटैग फाइन, यहाँ पे कुछ भी हेक्सा देके आप कलर डाल सकते हो। सर इसकी कंडीशन में आ रही थी बस प्रॉब्लम, जो उसकी कंडीशन क्या देनी है उसकी, मतलब इसमें बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, अगर इफ हेक्स कलर रॉन्ग है ना, तो हम्म। क्या कहते हैं, तो फिर वो एक अलर्ट दे देगा। तो वो समझ में नहीं आ रही थी कंडीशन क्या डालूं। फिर आप ऑन सबमिट पे डाल सकते हो इसको, है ना? ये तो आपका सही है यहाँ पे, टारगेट डॉट नहीं ये तो वैल्यू। पूरा बन गया था, ये पूरा बन गया था, लेकिन कंडीशन जो देनी है ना कि अगर हेक्स कलर रॉन्ग है, हाँ, तो वो कंडीशन कैसे देनी है, मुझे उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। उसमें क्या इशू आ रहा है यार, आपको समझ नहीं आ रहा मेरे को। नहीं मतलब वो लॉजिक क्या लगेगा, मतलब हेक्स कलर को मैं कैसे करूँ कि ये हेक्स कलर नहीं है, तो फिर वो कैसे होगा, क्योंकि हेक्स कलर जानता नहीं हूँ ना मैं क्या कितने हैं। हेक्सागोनल में आपको बस स्ट्रिंग चेक करनी है कि वेदर दैट स्ट्रिंग आफ्टर हैशटैग इज ऑफ द लेंथ 6 और नॉट। ओके ओके ओके, मतलब वो 6 लेंथ तक की है तो वो हेक्स कलर है, वरना नहीं है। करेक्ट ये करेक्ट, ना, ओके वही ओके, बस। हाँ तो बस ये इसमें कंफ्यूजन था। थैंक यू हम्म। सर। एक और यूज स्टेट लेने की जरूरत नहीं है उधर, क्योंकि चेक तो आपको कलर ही करना है ना। हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक है गाइस, आई गेस आपको भी असाइनमेंट जितना करोगे यार उतना ज़्यादा क्लियर होगा, है ना? यहाँ तो मैं कितना ही करा दूँ, या फिर कल आपको नूरी सर ने भी कराया होगा, तो जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक तो कॉन्सेप्ट पर नहीं पल्ले पड़ने वाला ना। हाउ दे वर्किंग, एग्री? ओके, चलो ठीक है गाइस, यू कैन ड्रॉप ऑफ नाउ, दैट्स ऑल वी वांट टू कवर टुडे। अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। यस, वेरी गुड नाइट गाइस।